और अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस समय अरुण जेटली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जीएसटी की इम्प्लीमेंट सीधा उनके पास पॉजिटिव रोल इन द मीटिंग्स इटसेल्फ. Yeah, please. Sir, two clarifications. Supriya Shinath from ET now. That the markets would want to know, do the cess and the surcharge of the centre government get subsumed by the GST? That's question number one. And question number two, that the clarification markets would want on is that when you get the GST law in the winter session, will that have a rate mentioned there? And what was your hesitation, and this is a political question that I'm taking the liberty to ask, in committing that this is not going to be a finance bill? Well, let me make it clear. Where is the rate going to be mentioned? Once we pass a constitution amendment which puts this drafting of the law in the first instance in the domain of the GST Council. Now, without the first draft approved by the Council before me, how can I commit as to what the nature of that draft and what the content of the rate itself would be? And therefore, on a presumptive basis, for me to say as to what will be the nature of that law would not be fair. Secondly, I'll only add this. The constitutional provision in Article 110 and 117 as to what is a money bill and what is a finance bill is absolutely clear. The word used in Article 110 is shall be, that is shall be deemed to be. What shall be deemed to be a money bill? So I can't convert a constitutional requirement into my own option. That's an option I don't have. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से Well, that is a factor which will be factored in when they fix the rate. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से एक जो संशोधन राज्यसभा ने पारित किया वो ये है कि राज्यों को जो मुआवजे की भरपाई की जाएगी, नुकसान की भरपाई की जाएगी, वहाँ पे मे की जगह शैल इस्तेमाल किया गया है। तो इससे आपके फिस्कल रोड मैप जो है उस पर क्या असर कोई पड़ेगा 5 साल तक अगर आप 100% तक भरपाई करते हैं तो? और दूसरा पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि 18% रेट रखने को लेकर के हम जन जन में अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे रेट बढ़ेगा। इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये जिम्मेवारी सरकार की है कि सरकार राज्यों को जो नुकसान होता है उस राजस्व को पूरा करे, और उसके लिए केंद्र सरकार को खुद की आवश्यकताओं के लिए भी राजस्व चाहिए होगा और मुआवजा देने के लिए भी राजस्व चाहिए होगा। अगर कैप अनरीजनेबल होता है तो उससे तो केवल डेफिसिट बढ़ेगा, और इसीलिए मैंने कहा कि मौजूदा जिम्मेवारी होना या पूर्व जिम्मेवारी होना, इसमें बड़ा अंतर रहता है। तो आप इकट्ठा कम कीजिए और खर्चा ज्यादा कीजिए, ये मौजूदा व्यक्ति नहीं कह सकते। सर, just I wanted to add on that question, Ujjwal from Newsrise. Just sir, there is a contradictory situation when you are saying that for a popular GST you need the lower rate, at the same time you have to compensate states. So in coming years we see more borrowing from the government or fiscal or creating more fiscal space by borrowing. I think what you need is an optimum rate. Sir, Meghna from INS. My question is that yesterday you had said that currently adding the service tax and the various other taxes that the taxpayer has to pay, the tax rate comes to much more. So can we be looking at a GST rate of over 18%? Well, obviously I indicated that currently what the taxpayers are paying
is phenomenally much higher. And as the calculations which were just now put forward by the Revenue Secretary showed to you, for almost 60-70% of the commodities on a weighted average, you are paying 27% plus a large number of other small taxes. So that will all be added to it. Some of the states have even called it 30-32% or more. Now the guiding principle laid by the empowered committee is that this rate has to come down. Now it will gradually slide down, but even in the first instance it will come down. That's the clear intention that they've expressed. This will have to be married with their second intent that states need enough money for their own developmental activities. Now, developmental activities of states are also in larger public interest. Curtailing them will certainly not help the common man. चलिए, तो आप अरुण जेटली साहब को सुन रहे थे जीएसटी के मुद्दे पर, लेकिन चंद्र अग्रवाल जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आप यहां पर बिलोंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि जो कॉस्ट है इनकर जो होती है कॉर्पोरेट्स की, वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे होती है। महंगाई के मोर्चे पर अगर लॉजिस्टिक्स सेक्टर कुछ भी अगर कमी देखने को मिली है रेट्स पे, तो क्या महंगाई यहाँ से बढ़ेगी? आप क्या समझते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर गुड्स की कॉस्ट कम होती है तो महंगाई पे भी ड्रॉप देखने को मिलेगा? आपका क्या इस पे टेक है? मेरे हिसाब से तो गुड्स की प्राइसेस जो है वो कम होने वाली हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मूवमेंट जो है गुड्स का वो ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी लोगों को और ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगा, तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम होगा और काफ़ी चीज़ें फैक्ट्री से डायरेक्टली चलिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि लागत में कमी आएगी तो उसका बेनिफिट जो है कॉर्पोरेट्स पास ऑन करते हुए नजर आएंगे। अल्ताफ जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन, क्या आप पास ऑन करेंगे ग्राहकों को कॉस्ट बेनिफिट, और क्या कपड़ों के दाम कम होंगे या फिर बढ़ सकते हैं? आपका रिएक्शन। जैसा मैंने पहले बताया, एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेट जो है आज की तारीख में 7 से 8% के आसपास है। सो मेरिट रेट पे डिपेंड करता है कि क्या रेट आएगा। सो जैसा मोस्टली तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो एफिशिएंसी मिलेगा, जो मार्केट बढ़ेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि एफिशिएंसी शुड गेट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। बट ऐसा अगर कंपेयर टू द करंट इफेक्टिव रेट जो कम है अभी, उसके एवज पे अगर काफ़ी ज़्यादा रेट आ जाता है, तब फिर वो पास ऑन करना मुश्किल होगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप ग्राहकों को आने वाले समय के लिए इसका बेनिफिट आता हुआ देखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जवाहर जी, आखिरी कमेंट्स आपके, जीएसटी का रेट आप क्या समझते हैं सर? क्योंकि डिश टीवी हमारी ग्रुप समूह की कंपनी और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंफर्टेबल रेट आप क्या समझते हैं कि जीएसटी का होना चाहिए जिससे आम ग्राहक पे ज़्यादा बोझ ना पड़े? मैं रेट के ऊपर में कोई ज़्यादा चिंतित नहीं, अपने डिश टीवी के मामले में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो वैसे ही हाई टैक्स के, जैसे कहते हैं ना, शराब और कैबरे और सिगरेट, तम्बाकू, उसके ऊपर में टैक्स है। तो मैं समझता हूँ डीटीएच और केबल इंडस्ट्री पे उससे भी ज़्यादा है। तो इस नाते जो है मैं रेट के ऊपर में मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो भी एम्पावर्ड कमेटी है वो करेगी तो ठीक ही करेगी, क्योंकि जो अभी ये कंज्यूमर को देना है और कंज्यूमर को डायरेक्ट दिखने वाला है, तो हर कंज्यूमर वोटर भी होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होगा। तो सरकारें जो है रीजनेबलनेस को अपने रेवेन्यू का ध्यान रखते हुए और लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए टैक्स लगाएगी। राइट, जवाहर जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पैनल में डिस्कशन करने के लिए। साथ से केशव जी, हिरन जी, अल्ताफ जी, आप सभी का ही बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे अपने कमेंट्स देने के